Hey guys, hi, this is Amrit Raj. And guys, today we are gonna do the second session of our favorite chapter, that is genetics, right? So today, guys, we will move forward with what I have taught you today. So guys, genetics is a chapter of class 10th ICSC, है ना? इसमें we have already done the session 1. Okay guys, session 1 में I had taught you about various terminologies. Okay guys, so I've taught you about various terminologies. Okay, so go do watch that and then come over here. Okay guys, because it will help you. Okay, so today's second session guys, and I'm gonna move forward with the Mendel's experiment. And as you all know, key under Umang 2.0, we are gonna cover the entire class ICSC, board ka syllabus over here on Vedantu YouTube channel 9th and 10th. Okay, so very good guys. So there's some motivation for you. Shoot for the moon, and even if you miss, you will end up in stars, I guess. है ना? So generally what happens now? So what I generally say is कि I teach you guys at this level, है ना? And eventually you will fall at this level, and exam mein there's gonna come till this level. Okay, so you're gonna rock in your exams guys, and generally I say exam does not matter, but the only thing is understanding. And as I had promised you guys, you're gonna be Mendel of your school. Right, you're gonna be fathers and mothers of your genetics of your school if you follow the chapters guys. Okay, trust me, this is one of the very interesting chapters, and it is very fun. ठीक है, and student gets confused on this. I don't want you to get confused over here guys. It's a very amazing chapter. Okay, so please follow it from the beginning. बीच में देखोगे थोड़ा सा confusion हो जाएगा, but I will try my level best to not let that happen. Cool. Amazing. So guys, I had given you some homework, है ना? If you remember last class में, as I was telling you, I had taught you various terminologies, है ना? So I had taught you what is allele, what is gene, what is homologous, what is homozygous, है ना? What is phenotype, what is genotype. So guys, please do watch it. And in that, I had asked you in the question, alleles are found where? They are found in the sister chromatids, they are found on the homologous chromosomes, or they are found on the neighboring chromosomes. So many of our friends had given the answer. For example, Aditya Narayan Pradhan has given the answer. Very good, but exactly they are found on the homologous chromosomes. Prabh Bhava, very good, Prabh Bhava, and Shlok Babna, very good guys. You guys gave up very amazing answers, right? So guys, if you wanna be featured over here, okay, if you wanna be featured over here, है ना? So do let us know the answers, है ना? In the chat box today also I'll give you questions. So you can let us know over here in the chat box, and there's a possibility I might project you in the beginning of the session. Okay, very good. Exactly. Answer was homologous chromosomes. The pair of alleles are found on the homologous chromosome. What are alleles, guys? These are alternative forms of a gene. What's a gene? It's a segment of DNA which codes for a particular character. For example, height is a gene. It can have two alleles, that is tall and dwarf. Height is a gene. It can have two alleles, that is tall or dwarf. Cool. वेरी गुड. तो गाइस लेट्स डू अ क्विक रिकैप. ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत तो करी है. लेट मी डू अ क्विक रिकैप विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. ओके, जल्दी जल्दी कर लेंगे, मजा आएगा. तो द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज, क्या होता है? कम ऑन, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स गाइस. द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? जीन, डीएनए, क्रोमोसोम और एलील. कम ऑन गाइस, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी लुकिंग एट द कमेंट बॉक्स, ट्रस्ट मी गाइस. ठीक है, exactly, answer is gene. Gene is the physical unit of inheritance. Height is a gene, eye color is a gene, है ना guys? मैंने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था लास्ट क्लास में. मूविंग फॉरवर्ड, फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना सर? मी, आई एम फादर एंड मदर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, यस यू गाइस आर, बट ओरिजिनल फादर कौन है? ठीक है, मेंडल है, सर्टन है, जॉनसन है और डार्विन है. हु इज द ओरिजिनल फादर ऑफ जेनेटिक्स? एग्जैक्टली गाइस, आंसर इज मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. व्हाई? क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारे रूल्स बताए हमें. ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड genetics very extensively. Genetics मतलब होता है कि how characters are passed from one generation to other. How characters are passed from my father to me. How will the characters pass from me to my babies and from them to their babies? है ना? So likewise. And why I have got some characters from my father, I have got some characters from my mother. So why I look more like my father and less like my mother, or why do I look more like my mother and less like my father? There was a student in my class. He was like, "Sir, मैं पूरा अपने पापा की तरह दिखता हूँ. आई एम एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर टू माई फादर. वाई डोंट आई हैव कैरेक्टर्स ऑफ माई मदर?" ऐसे वो पूछ रहे थे मेरे से. तो वो हमें मेंडल अंकल ने बताया कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड.
Okay, the type of allele which get masked in a heterozygous condition is, पहले तो आपको बताना चाहिए मास्क का मतलब क्या होता है, फिर आपको बताना चाहिए हेट्रोजाइगस क्या होता है, फिर आप आंसर करोगे। बताओ, चलो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में गाइस। एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव। द टाइप ऑफ allele which gets masked, हेट्रोजाइगस मतलब बेटा होता है क्या है, हेट्रोजाइगस मतलब वो वाला कंडीशन होता है जिसमें द क्रोमोस alleles ऑन द क्रोमोसोम आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी हो गया, या आई कलर की बात करें तो ब्लैक और ब्राउन हो गया, तो दोनों अलील्स आर डिफरेंट। इफ बोथ ऑफ देम आर सेम लाइक दिस और लाइक दिस मीन्स होमोजाइगस। होमोजाइगस में दोनों अलील सेम है ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों अलील डिफरेंट ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट डू आई कॉल एज हेटेरोजाइगस। ठीक है, वेरी गुड। मास्क्ड मतलब वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा। अब इन दोनों में जैसे कि मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इनमें क्या होता है, जो स्मॉल टी है ना विच कोड्स फॉर शॉर्टनेस, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता, वो मास्क हो जाता है बाई द कैपिटल टी जो कि टॉलनेस को एक्सप्रेस करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अगर एक टॉलनेस वाला शॉर्टनेस वाला जीन होगा तो द प्लांट विल बी टॉल, है ना। तो व्हाट हैपेंड, दिस वाला allele got suppressed or masked by this one, so that is what's called as masking। मतलब that is a recessive, this one is a recessive trait, the one which get expressed is a dominant trait। तो ये मैंने आपको बताया था इस लास्ट क्लास में। ओके, आई वोंट से कि देख लेना जाके, जिसको देखना है देख लेना। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द जीनोटाइप गाइस, कम ऑन, व्हाट इज अ जीनोटाइप? इट्स एन एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, it's a genetic constitution। अच्छा, dominance or recessiveness, what's the genotype guys, come on, what's the genotype? Exactly guys, genotype मतलब होता है external, sorry my bad, genotype होता है genetic constitution। external appearance क्या होता है guys? phenotype। phenotype is what guys? physical appearance, मतलब दिखने में कैसा है। genotype मतलब genetically कैसा है, G for genes, G for genotype, P for phenotype, excuse me, P for physical appearance, P for physical अपीयरेंस। ठीक है, वेरी गुड। ओ माय गॉड, आपको पता है गाइस, वेदांतु का ना एक प्रो सब्सक्रिप्शन आया है। ठीक है, प्रो सब्सक्रिप्शन, इस ये क्या है, ये इट इज जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन, उस टाइप का चीज है। ठीक है, यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट, डब्ल्यू सॉरी वेबसाइट मतलब दिस लिंक है ना, vdnt.in/youtube pro। इसमें गाइस अगर आप ये कोड डालते हो AR pro, AR एज इन अमृत राज प्रो, तो यू विल गेट अ डायरेक्ट डिस्काउंट ऑफ 1300 रुपीज गाइस। एंड इफ लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रो, आप यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हो, तो आई टेल यू बेटा, लाइक फर्स्ट लेट अस सी हाउ डू यू टेक इट, सेलेक्ट द ग्रेड, गो फॉर ICSE, है ना, एंड देन यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन, है ना। तो AR प्रो इफ यू यूज द कोड, है ना, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 1300 रुपीज। लाइक ओके, नाउ गाइस होता क्या है ना इसमें, इसमें यू विल गेट access to the live classes। मतलब for example I will be teaching live and you can get to ask doubts from me, that is you will get personal attention। Trust me guys, I take classes of ICSE on long term courses, and if you any of my students are there, just let me know in the comment box and they will tell you कि how extensively we do doubts over there, इतना अच्छे से डाउट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह होता है उस पर। ठीक है, एंड गाइस दिस लॉन्ग टर्म कोर्स आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, जिसमें सारे के सारे चैप्टर कवर होते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स भी होगा टुवर्ड्स द एंड, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आपको मिलती है। तो मतलब ओवरऑल करी मतलब होता क्या है कि यू विल हैव अ गुड स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन थ्रू आउट द ईयर, मतलब ऐसा स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं होगी। Exactly, तो guys do take up the course if you like it, if you like the Vedantu, है ना, तो you can choose your time and accordingly your teacher also। ठीक है, तो देख लेना उसके बारे में ना। आज क्या करेंगे हम सर, आज क्या करोगे? आज बेटा हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम में मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बता दी थी सारी। लास्ट क्लास में आई हैड टोल्ड यू ऑल द टर्मिनोलॉजीज। टुडे आई विल टेल यू अबाउट एक्सपेरिमेंट जो मेंडल अंकल ने करा था। ठीक है, एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, वेरी गुड। ओके सर, तो ये बेटा ये थे हमारे मेंडल अंकल, ही इज द मेंडल अंकल, है ना, ही इज प्लेइंग विद द फ्लावर्स। ठीक है, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, है ना। तो मेंडल अंकल ने व्हाट डिड ही डू, ही डिड हिज एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट, पी मतलब मटर। एंड गाइस इसका नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइसम सटाइवम। व्हाट इज इट? पाइसम सटाइवम, बायोलॉजिकल नेम कहते हैं इसको। ठीक है, तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा पी प्लांट के साथ, विच इज कॉल्ड एज पाइसम सटाइवम। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर
मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया? व्हाई डिड ही नॉट टेक रोज प्लांट? वो तो बहुत ही सुंदर है. व्हाई डिड ही नॉट चूज लिली प्लांट? और व्हाई डोंट ही चूज मैंगो प्लांट? है ना, मैंगो तो सबका फेवरेट है, टेस्टी भी बहुत है ना, वो चूज करते हैं. मेंडल अंकल ने पी प्लांट क्यों चूज करा? देन आई विल टेल यू बेटा. द पी प्लांट हैड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. फॉर एग्जाम्पल, इट हैड अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. मतलब शॉर्ट लाइफ साइकिल मतलब 3 to 4 months में क्या होता था, तो एंटायर पी प्लांट कुड ग्रो अप. देन आई कैन स्टडी. देखो, जेनेटिक्स का मतलब क्या है? स्टडीइंग वेरियस जनरेशंस, है ना. तो अब मान लो मेंडल अंकल जनरेशन स्टडी कर रहे हैं, तो आफ्टर एवरी 3 month न्यू पी प्लांट आ जाएगा. देन अगेन न्यू पी प्लांट, आफ्टर एवरी 3 month अगेन न्यू प्लांट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इन अ ईयर मेंडल अंकल को स्टडी हाउ मेनी, 3 to 4 जनरेशन. अब मैंगो प्लांट को ग्रो करने में ही 10-15 साल लग जाएंगे, तो मेंडल अंकल तो बेचारे बूढ़े हो जाएंगे ना, है ना. तो टू टू स्टडी एज मेनी जनरेशन एज पॉसिबल, मेंडल टुक अ प्लांट विच हैड शॉर्ट लाइफ में, ताकि वो बहुत सारी जनरेशन पढ़ सके. ठीक है, एक चीज ये हो गया. दूसरी चीज, दे कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. ओके, जैसे आपने प्लांट पढ़ा होगा कि देखो कुछ प्लांट समर में ग्रो करते हैं लाइक खैरिफ क्रॉप्स, कुछ प्लांट विंटर में ग्रो करते हैं लाइक रैबी क्रॉप्स, है ना. और कुछ प्लांट समर सीजन में. तो पी प्लांट ऐसा प्लांट है जो कि इट कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. तो मेंडल अंकल बोले वाह, मैं तो पूरे साल भर एक्सपेरिमेंट करूंगा, है ना, क्योंकि उन्हें बनना था फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो उन्होंने कहा भैया हम करेंगे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट. तो ही टुक सम प्लांट विच कुड बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर. It could be easily self and cross pollinated. अब self and cross pollination मतलब it is like fertilization. अब मैं genetics कैसे कर रहा हूँ? What am I studying? I am studying if two parents are there, one male and female, उनके बेबी में कौन सा कैरेक्टर होगा. ये तो देख रहा हूँ, एक मेल है एक फीमेल है, इनके बेबीज में कौन सा फादर के कैरेक्टर्स आएंगे कि मदर के. तो what is there? They should be easily made, like made to mate each other, मतलब fertilization हो पाए. दैट वाज द मेन कोर्स, मेन थिंग, कि भैया मेल और फीमेल गैमीट्स मिक्स हो पाए. तो जो पी प्लांट है उसमें क्या होता है, ये बहुत ही ईजी होता है. पॉलिनेशन इज वेरी इजी इन केस ऑफ पी प्लांट. तो उन्होंने कहा अच्छा वाओ. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब फ्रॉम, पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. जैसे आपको पता है ना, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. ये देखो, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर होता है, सॉरी एंथर कह रहा हूं, स्टेमन. जो स्टेमन होता है ना गाइस, जो स्टेमन होता है ना, वो मेल पार्ट होता है, और पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. ये स्टेमन है, ये स्टेमन होता है, सॉरी स्टेमन है, दिस द मेल पार्ट ऑफ द प्लांट, पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट. तो जो स्टेमन होता है ना गाइस, इसमें एक एंथर होता है विच प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन. दिस पोलन ग्रेन रीचेस द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, दिस कॉल्ड एज पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसको क्या कहते हैं हम, पॉलिनेशन. अब वैसे एक फ्लावर है, सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन. मतलब एक फ्लावर है, उसका मेल पार्ट है, उसका फीमेल पार्ट है, ठीक है, उसके एंथर से स्टिग्मा पे आ गया, तो इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. अब दूसरा फ्लावर है, उसके एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, आई कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग पॉलिनेशन क्या हो गया. ठीक है गाइस, तो ये होता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इजी होता है इन केस ऑफ पी प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन वाज वेरी इजी. तो मैंने कहा अच्छा ये तो मैं यूज करूंगा. वन मोर थिंग, द पाइसम सटाइवम हैड 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. 7 मतलब सर, मतलब देखो, अलील क्या होते हैं, अलील अ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल टॉल एंड शॉर्ट आर कंट्रास्टिंग, है ना, तो एक कैरेक्टर हो गया. राउंड एंड रिंकल्ड शेप ऑफ अ पी, दैट इज क्लियरली कंट्रास्टिंग. मतलब आप देख के बता दोगे हाँ ये राउंड है, ये रिंकल्ड है. देन ग्रीन एंड येलो कलर ऑफ द सीड, तो आपको देख के पता चल जाएगा हाँ यार ये ग्रीन है, ये येलो है. तो देयर वर 7 सच ट्रेट्स व्हिच मेंडल कुड इजीली सी और उसको स्टडी कर सकते थे. मतलब अब मेंडल क्या स्टडी करे कि क्या टॉलनेस और शॉर्टनेस पास हो रहा है, क्या राउंड और रिंकल्ड पास हो रहा है, क्या कलर येलो और ग्रीन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो मेंडल हैड टू स्टडी दीज कैरेक्टर्स. तो मेंडल के लिए 7 कैरेक्टर्स थे, मतलब ऐसा नहीं एक हो दो हो, देयर वर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर व्हिच कुड बी इजीली स्टडीड बाय द मेंडल. तो इसलिए मेंडल ने कहा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी बात है. देन सिंगल क्रॉस रिजल्ट्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. अब इसमें क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, पी प्लांट में अगर एक बार मेट करो ना, तो दे वुड गिव यू लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. तो मेंटल स्टडी कर सकते हैं हाँ यार इसमें फादर का कैरेक्टर है, इसमें मदर का कैरेक्टर है, इसमें फादर का, इसमें मदर का, लाइकवाइज. आर यू टू अंडरस्टैंड? तो दैट इज व्हाई मेंटल टुक द पाइसम सटाइवा और द पी प्लांट.
First thing, grow short life cycle. Second, they can be grown throughout the year. Third, cell pollination, cross pollination very easy. They exhibit 7 pair of contrasting trait, and single cross results in large number of offsprings. Okay sir. फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्लावर कलर पर्पल कलर हो सकता है, व्हाइट कलर हो सकता है. पोजीशन, एक शेल पोजीशन ऑफ फ्लावर और टर्मिनल. एक शेल मतलब साइड में, टर्मिनल मतलब यहाँ पे. तो टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर्स कैन यू सी, देख के पता चल जाएगा मुझे. सीड कलर येलो है या फिर ग्रीन है, तो आई कुड स्टडी राइट. ये फादर का सीड येलो कलर का है, मदर का ग्रीन कलर का है, तो बेबी का कौन से कलर का है, तो मेरे को देख के ही पता चल जाएगा. इंस्टेड ऑफ मैं मेजर करूँ कि हाँ ये लीफ का साइज कितना है, अगर मैं लीफ का साइज में करूँ तो वो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए. मतलब आइडेंटिफाई करना, अच्छा फादर की लीफ का साइज इतना है, मदर का इतना है, बेबी का कितना है, बहुत डिफिकल्ट होगा है ना. सीड शेप राउंड और रिंकल देख के पता चल जाएगा यार, फादर का राउंड है, मदर का रिंकल है, बेबी का राउंड है, तो बेबी के पास फादर का कैरेक्टर आया है. तो लाइकवाइज पॉड शेप, लाइक इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, मतलब फूला हुआ पॉड या चिपका हुआ पॉड. पॉड कलर ग्रीन एंड येलो अगेन. स्टेम लेंथ, टॉल है कि शॉर्ट है. Yes, guys. So let us see what Mendel's experiment consisted of. ठीक है, मेंडल ने क्या स्टेप्स लिए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए. वेरी गुड, हमें समझ आ गया कि पी प्लांट उसने क्यों चूज करा था. लेट अस सी मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था. ओके, व्हाट डिड मेंडल डू इज, मेंडल टुक प्योर लाइंस विद सेलेक्टेड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. मतलब क्या है सर, मतलब मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट लिया. अब कहोगे सर ये प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट क्या होता है, बताओ. देखो बेटा, इमेजिन tallness is expressed by capital T and short is expressed by मतलब उसको एक्सप्रेस करें हम स्मॉल टी से. ठीक है, तो गाइस टॉलनेस जो कैरेक्टर मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट टाइम पे, ठीक है, वो एक क्रोमोसोम पे होता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है. मैंने आपको जैसा याद है कि a pair of chromosome consists the same gene, homologous chromosome consists the same genes at the same location. ठीक है गाइस, अब प्योर लाइन का मतलब है कि जो दोनों क्रोमोसोम है दोनों सेम है, टॉलनेस वाला सेम हो गया. शॉर्टनेस का प्योर मतलब स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ओवर हियर. प्योर मतलब गाइस इट इज होमोजाइगस कंडीशन. प्योर टॉल मतलब प्योर कैपिटल प्योर शॉर्ट मतलब स्मॉल टी. ठीक है, अब यू विल बी लाइक सर हाउ डिड मेंडल नो कि वो प्योर टॉल है या प्योर शॉर्ट है. बेटा मेंडल ने प्योर टॉल प्लांट पता है कैसे बनाया. ही टुक 2 टॉल प्लांट्स है ना, उनको ब्रीड करते गए, बार बार ब्रीड करते गए, तो उनके जो भी बेबीज आ रहे थे उसमें जो टॉल हुआ उसको दोबारा ब्रीड करा, फिर उनका जो बेबीज है उसको टॉल आया उसको ब्रीड करा. मान लो गलती से अगर एक शॉर्ट प्लांट आ गया तो उसको रिमूव कर दिया, उसको लाया नहीं. आर यू अंडरस्टैंड, व्हाट डिड ही डू, ही केप्ट ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स. मतलब फर्स्ट जनरेशन इनका बेबीज आया, इसमें से टॉल प्लांट्स थी, फिर दोबारा ब्रीड करा, इसमें से टॉल प्लांट्स थी, दोबारा ब्रीड करा, और जो अगर मान लो शॉर्ट आ गया तो उसको एलिमिनेट कर दिया. तो लाइकवाइज ही डिड द शॉर्टनेस आल्सो, मतलब 2 शॉर्ट प्लांट्स को उसने ब्रीड कराया, शॉर्ट प्लांट आया, 2 को फिर से ब्रीड कराया, शॉर्ट प्लांट आया. तो आफ्टर मेनी जनरेशंस देयर वर ओनली शॉर्ट प्लांट्स, आफ्टर मेनी जनरेशंस देयर वर ओनली टॉल प्लांट्स. तो दैट मींस प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस कंडीशन. कूल. तो मेंडल ने लिया और प्योर लाइन लिया पहले तो. ठीक है, पेरेंट जनरेशन ये था टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, तो मेंडल ने दोनों को ब्रीड करा. ही क्रॉस पॉलिनेटेड द contrasting traits to form the first filial generation. F1 generation मतलब जो पेरेंट्स को ब्रीड करके आता है उसको हम कहते हैं F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन. तो मेंडल ने नोटिस करा कि एक टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट और प्योर शॉर्ट प्लांट को जब उसने ब्रीड करा तो ऑल द प्लांट्स वेर टॉल, नन ऑफ देम वेर मीडियम हाइट, और ऐसा कुछ नहीं मतलब कि मिक्स हो गया मीडियम हाइट का हो गया, नहीं, दे वर ऑल टॉल. मेंडल बोला अच्छा ये पेरेंट का कैरेक्टर तो एक्सप्रेस हो गया, वेयर डिड दिस कैरेक्टर गो. मेंडल वाज लाइक कि ये वाला कैरेक्टर कहां चला गया. ठीक है, तो मेंडल को लगा अच्छा ठीक है, तो मेंडल ने क्या करा फिर जितने भी F1 में थे ऑफस्प्रिंग्स, ही मेड देम ब्रीड अगेन. मतलब ऑफस्प्रिंग बहुत सारे टॉल थे, तो इसमें ऐसा नहीं कि एक ही सारे टॉल है, मतलब there were many plants which were male, there were many plants which were female, they were like there were many plants. So Mendel took one male plant from here, the male plant from here, female plant from here in the F1 generation, और मेंडल ने इन दोनों को ब्रीड कर दिया. ठीक है, we call it as F2 generation, we call it as F2 generation. Okay, now मेंडल ने क्या करा, F1 plants were selfed and resulting second filial generations were observed. मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए थे F1 जनरेशन में उसमें से एक मेल लिया और फीमेल लिया और दोनों को ब्रीड करा, तो इसको मैं कह रहा हूं F2 जनरेशन. तो मेंडल ने F2 जनरेशन को देखा, अब क्या होगा, तो मेंडल ने ऑब्जर्व करा कि 75% वेर टॉल बट
25% were short. One more thing, see, this was one parent character, so second parent का character. So in the F1 generation, character of one parent was not present, masked, but this character reappeared in the F2 generation. क्या हुआ, जो कैरेक्टर पेरेंट में था वो वापस अपीयर कब हुआ, सेकेंड जनरेशन में. तो मेंडल बोला कि मतलब ये वाला कैरेक्टर F1 जनरेशन में भी प्रेजेंट था बट एक्सप्रेस नहीं हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फोकस अगेन गाइस, फोकस अगेन. एक बार देखो, मेंडल ने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, प्योर डॉट प्लांट लिया, उसके बेबीज को ऑब्जर्व करा. इसके बेबीज को ऑब्जर्व करा तो देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे कैरेक्टर्स हैड कैरेक्टर ऑफ ओनली वन पेरेंट. All the plants had characters of only one parent. जो other parent का characters they were not present. वो मतलब था ही नहीं. But the other parents characters were observed in the F2 generation. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वाला कैरेक्टर यहाँ पे भी प्रेजेंट था, बट इस टॉलनेस ने इसको सप्रेस कर दिया. दिस टॉलनेस सप्रेस्ड इट. ओके, फिर मेंडल ने काउंट करा. मेंडल ने देखा 75% तो टॉल है और 25% शॉर्ट है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? तब मेंडल को पता चला ये ऐसा तभी हो सकता है जब 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 ये वाला इसको, जब टॉलनेस वाला जो कैरेक्टर है शॉर्टनेस वाले कैरेक्टर को सप्रेस कर दे. फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ पुन्नेट स्क्वायर. ठीक है, देखते हैं. जैसे कि मतलब कैपिटल टी था, स्मॉल टी प्योर पेरेंट है ना. जब इन दोनों को ब्रीड करा इट विल केम आउट टू बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब इसमें क्या है गाइस, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया, तो कैपिटल टी इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट, स्मॉल टी इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट. अब मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी को दोबारा ब्रीड करा, सेल्फ करा, मतलब सेल्फिंग, मतलब इसी में से मैंने एक मेल उठा लिया, एक इसी में से मैंने एक फीमेल उठा लिया, दोनों को ब्रीड करा. तो मुझे क्या मिला गाइस, मुझे मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. तो गाइस कैन यू सी ओवर हियर 75% this one and this one, that is 3 out of 4 are tall and 1 is gonna be short. ये तभी पॉसिबल होगा जबकि एक कैरेक्टर दूसरे को सप्रेस करे, अदरवाइज इट कैन नॉट. ये आपको अंडरस्टैंडिंग आती है प्रोबेबिलिटी. इफ यू नो प्रोबेबिलिटी देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इज द ओनली सिचुएशन. मेंटल वाज गुड विद मैथमेटिक्स आल्सो. ठीक है, तो तभी वो इतना सारा डिड्यूस कर पाया. आई होप यू आर मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग. एक बार भी आपको और समझ आएगा. जस्ट स्टे ऑन विद मी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट मेंडल डिड. ओके, तो व्हाट डिड वी सी, पेरेंट को प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को उसने ब्रीड करा, तो ही गॉट ऑल टॉल. व्हेन ही सेल्फ, मतलब F1 जनरेशन में एक मेल और फीमेल को उठा के उसने ब्रीड करा, तो ही गॉट बैक द कैरेक्टर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन विच वॉज नॉट सीन इन द F1 जनरेशन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना. यस गाइस, तो व्हाट डिड मेंडल लर्न फ्रॉम दिस? ओके, तो मेंडल गेव हिज हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, सजेशंस. ठीक है, मेंडल ने अपनी मतलब कहा कि उसने क्या स्टडी करा, उसको क्या लगा, उसने इस एक्सपेरिमेंट से व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम दैट. ओके, व्हाट डिड ही से? ही सेड इन एन ऑर्गेनिज्म देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर एग्जिस्टिंग दैट कंट्रोल्स अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर्स. ओके, क्यों? क्योंकि उस वक्त ना जब मेंडल वाज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट्स देयर वाज नो आइडिया अबाउट डीएनए, देयर वाज नो आइडिया अबाउट क्रोमोसोम. किसी को पता नहीं था कि क्रोमोसोम क्या होता है. क्रोमोसोम्स वर नॉट येट discovered. तो guys you know Mendel was thinking ahead in time. Mendel was so ahead in his time. ठीक है, मेंडल बहुत ज्यादा दिमागदार, सोच मतलब समझदार आदमी थे. तो he called the chromosomes as factor. इन्होंने कहा कि फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स में और ऑर्गेनिजम्स में जो कि कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ठीक है, और वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, वेरी गुड. तो मेंडल ने कहा कि ऑर्गेनिज्म ये पेयर ऑफ फैक्टर्स किससे इनहेरिट करता है, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है. एक सेट ऑफ फैक्टर वो अपने फादर से इनहेरिट करता है, अदर सेट ही और शी इनहेरिट्स फ्रॉम हिज और हर मदर. ठीक है, एंड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर. और मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने कहा जब ये गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, ये जो फैक्टर्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से. मतलब जो जैसे कि हमें पता ही है क्रोमोसोम्स, व्हाट हैपेंस टू द क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. मतलब जो कैपिटल टी कैपिटल था ये क्या होता है, ये सेपरेट
हो जाता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, ये हमने देखा था, राइट गाइस, वेरी गुड। देन और मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज टू अनलाइक फैक्टर्स, मतलब जैसे कि इस केस में कैपिटल टी और स्मॉल टी में वन में बी एक्सप्रेस, जैसे कि कैपिटल टी एक्सप्रेस हो जाता था जिसको हम डोमिनेंट कहते थे, और स्मॉल टी जो एक्सप्रेस नहीं होता था उसको हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। तो गाइस मेंडल बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स ही गेव अस, यस गाइस, ही गेव अस बेसिकली टू लॉस। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन से लॉस थे, है ना। तो मेंडल गेव अस टू लॉस। फॉर द फर्स्ट लॉ ही गेव अस लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें मेंडल ने बोला आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लाइक दिस, वन dominates the other character, है ना, and gets expressed. This one which dominates the other character and gets expressed is called as dominant trait. It is called as dominant trait. The other one which gets suppressed and does not get expressed is called as recessive trait. दूसरा लॉ जो मेंडल ने दिया था, he gave law of segregation. मेंडल ने क्या दिया, मेंडल गेव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें मेंडल ने क्या बोला, मेंडल सेड द alleles they separate during the formation of gametes, मतलब ये क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं जब गैमीट्स बनता है, और क्या होता है, ये यूनाइट करते हैं जब जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल सी दैट दिस माय फादर इज माय मदर, ओके, तो जो मेरे फादर के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, पेयर में एग्जिस्ट करते होंगे, तो वो डिवाइड हुए, वो सेपरेट हुए। मेरे मदर के कैरेक्टर वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो डिवाइड हुए, और एक सेट ऑफ कैरेक्टर मेरे फादर से, एक सेट ऑफ कैरेक्टर मेरी मदर से मेरे पास आ गया। अब इन दोनों कैरेक्टर्स में से जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, जो रिसेसिव होगा वो एक्सप्रेस होगा। दैट इज व्हाई some of my characters are like my father, जो फादर के कैरेक्टर डोमिनेट करते होंगे, एंड सम ऑफ माय कैरेक्टर्स आर लाइक माय मदर, जो वो डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चा जैसे कह रहा था कि सर मैं आई लुक मोर लाइक माय फादर देन माय मदर, तो उनका क्या, उस केस में क्या हुआ, द फादर्स कैरेक्टर्स हैज डोमिनेटेड द मदर्स कैरेक्टर इन हिज और हर केस। ठीक है, वेरी गुड। तो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, एक बार जल्दी से क्विक चेक कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चंस की हेल्प से। व्हाई डिड मेंडल चूज कार्डन पी गाइस, क्यों चूज करा, बिकॉज इट इज इजी टू ग्रो, it can be easily self-pollinated and cross-pollinated, it has a shorter lifespan, और all of these क्यों? Come on guys, let me know in the comment box, बताओ जल्दी। Exactly, all of these, है ना, वो जल्दी ग्रो करते हैं, क्रॉस पॉलिनेट सेल्फ करने में इजी होता है, और 3-4 महीने में वो बड़े हो जाते हैं, फिर आई कैन स्टडी मेनी जनरेशंस, है ना। The F1 generation in the Mendel's experiment were heterozygous, homozygous, 50% heterozygous and 50% homozygous, और homozygous recessive। F1 जनरेशन में क्या थे गाइस, जो फर्स्ट जनरेशन होता है पेरेंट्स से, यस एक्जेक्टली, द आंसर इज हेटेरोजाइगस होते हैं, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी जब ब्रीड करते हैं तो कहते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस। वेरी गुड। तो गाइस एक और बात देखते हैं दोबारा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं मेंडल का, ठीक है, जो अभी मैंने सेम चीज बताई थी। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ गाइस, ऑब्वियसली मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब व्हेन आई एम स्टडीइंग ओनली वन कैरेक्टर, मतलब मैं या फिर हाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ, या तो मैं कलर ऑफ द सीड के बारे में पढ़ रहा हूँ, जब मैं एक ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहा होता हूँ उसको कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके सर, देखते हैं, जैसे कि मैं हाइट के बारे में पढ़ रहा हूँ या फ्लावर कलर, बस एक ही कैरेक्टर पढ़ रहा हूँ। जैसे कि अभी आप मेरे को देख लो, मेरे बहुत सारे कैरेक्टर्स, माई हाइट इज अ कैरेक्टर, माई आई कलर इज अ कैरेक्टर, है ना, माई स्किन शेप इज अ कैरेक्टर, टाइप इज अ कैरेक्टर। तो बट मैं ये सब नहीं पढ़ रहा, मैं बस ये पढ़ रहा हूँ कि मेरे बेटे का हाइट क्या है और उसके बेटे का हाइट क्या है, मेरे फादर की हाइट क्या है। आई एम जस्ट स्टडीइंग ट्रांसफर ऑफ हाइट फ्रॉम वन जेंडर, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मेंडल ने क्या किया था गाइस, प्योर टॉल लिया था, प्योर डॉर्फ लिया था। प्योर टॉल, ऐसा है, टोल्ड यू, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर टॉल, मतलब तो टॉल प्लांट्स को बार बार ब्रीड करो, जो अल्टीमेटली क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब सारे के सारे प्लांट्स टॉल ही होंगे, तो उसको कहते हैं हम गाइस प्योर टॉल, मतलब दोनों अलील्स सेम है, दोनों अलील सेम है, तो मतलब प्योर मतलब होमोजाइगस कंडीशन। हाउ डू आई डू इट, बाय ब्रीडिंग देम अगेन एंड अगेन। तो ओके, तो इसमें इसने क्या गैमेट्स बनाए, कैपिटल टी, ऑब्वियसली दिस इज ओनली वन गैमेट व्हिच इट कैन फॉर्म, ये स्मॉल टी, दोनों को ब्रीड करा तो क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अगेन अब मेरे को सेल्फिंग करनी है। सेल्फिंग मतलब क्या होता है गाइस, इसी में से F1 जनरेशन मैंने एक मेल लिया और F1 जनरेशन मैंने एक फीमेल लिया, अब दोनों को ब्रीड कर दिया। ओके, तो नाउ आई एम गोना सी गैमीट्स, क्या गैमीट्स बनाएगा, से इमेजिन दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल, अभी क्या गैमीट बनाएंगे गाइस, दो गैमीट बन सकते हैं, एक दिस वन एंड दिस वन, this female can also produce two gametes. Now what are the possible combinations guys,
देखो ये तो ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि देखो इसको डाला और इसको किया, इसको डाला और इसको किया, इधर इधर इधर। तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, और यू कैन मेक अ पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कि हम कोई मिस ना कर दे, सो दैट वी डोंट मिस एनी कॉमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ, तो कैपिटल टी यहाँ से आया, यहाँ से आया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से आया, यहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी अगेन, यहाँ से आया स्मॉल टी, यहाँ से आया स्मॉल टी, तो स्मॉल टी। तो गाइस दिस इज द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। देखो 2 3 4 यही तो आया है, तो यही यहीं पे भी आया है। ठीक है, वेरी गुड। तो गाइस मैंने क्या कहा, F1 जनरेशन में गाइस बस एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है एक पेरेंट का, और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स वापस एक्सप्रेस हो जाते हैं। बट गाइस इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, F2 जनरेशन जो कैरेक्टर एक्सप्रेस है ना, वो रेशियो होता है 3:1। मतलब 75% ऑफ प्लांट्स वेर टॉल एंड 25% वेर शॉर्ट। तो मेंडल ने कैलकुलेट कर, मेंडल ने गिना, अच्छा इतने सारे हैं तो उसमें 75% वेर टॉल एंड 25% वेर शॉर्ट। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है गाइस जब दो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, दो दो मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम में दो अलील एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और एक डोमिनेंट होता है और एक सप्रेस करता है, मतलब एक डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है। ये गाइस एक थोड़ी सी मैथमेटिक्स उसने लगाई, मेंडल बहुत ही स्मार्ट आदमी थे, उन्होंने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन दिस केस। आप और कोई कितना भी दिमाग लगा लो, और किसी केस में ये चीजें पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी जो मेंडल ने ऑब्जर्व करा। तो या अगेन एज यू सी, कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हाट डू आई गेट? आई गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, है ना गाइस? वेरी गुड। बट in the F2 generation what do I get guys? Capital T small t, capital T capital T, capital T small t, capital T small t, small t small t। now guys अब मेरे को बताओ जीनोटाइप क्या है यहाँ पे? जीनोटाइप क्या है गाइस? जेनेटिक मेकअप। एक तो कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी। और कोई जीन जेनेटिक मेकअप है? और कोई जेनेटिक कॉम्बिनेशन है? नहीं। कैपिटल टी कितना है? एक है हमारे पास। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है? 2 है, लाइक दिस। एंड स्मॉल टी इज 1। So guys, I can say genotypic ratio of a F2 generation is 1:2:1। मतलब 1 कैपिटल टी बनता है, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है, और 1 स्मॉल टी बनता है। सिमिलरली जब मैं फिनोटिपिक रेशियो कहूंगा, मतलब फिजिकल अपीयरेंस, या तो वो टॉल होगा या फिर वो शॉर्ट होगा। हाउ मेनी टॉल प्लांट आई एम गेटिंग? 1 2 and 3, 3 tall plant। and how many short plants I am getting? I am getting only 1 short plant। how many tall plants I'm getting? 3। how many short plants I'm getting? 1। cool। so guys in an F2 generation the genotypic ratio is 1:2:1 and the phenotypic ratio is 3:1। cool। did you understand this? very good। अब ना बस एक क्वेश्चन आता है इस चीज में, सर चलो आपको मान लिया हमने, नाउ यू आर सेइंग कि दिस इज आल्सो टॉल, दिस इज आल्सो टॉल, बट हाउ डिड मेंडल नो कि ये कैपिटल टी टॉल है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है? मतलब मेंडल को पता कैसे चला कि ये होमोजाइगस टॉल है, दिस इज अ होमोजाइगस टॉल और इज अ हेटेरोजाइगस टॉल? चलो शॉर्ट तो आई गॉट, मतलब समझ आ जाता है, बट ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो पता कैसे चला मेंडल को? डिड दिस क्वेश्चन कम टू योर माइंड, यस और नो? यस गाइस, डिड दिस क्वेश्चन कम टू योर माइंड, यस और नो? बताओ मुझे, आई विल टेल यू। तो मेंडल ने इसके लिए पता है क्या करा गाइस? मेंडल डिड अ क्रॉस कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। मेंडल ने आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, मेंडल ने करा टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जो ऑफस्प्रिंग्स F2 जनरेशन में आए हैं, जो F2 जनरेशन के टॉल ऑफस्प्रिंग है, उसको ब्रीड कर दो प्योर ड्वार्फ से। जो F2 जनरेशन के टॉल हैं, जैसे कि कैपिटल टी को ब्रीड कर दो स्मॉल टी से। सिमिलरली कैपिटल टी स्मॉल टी को ब्रीड कर दो स्मॉल टी से। ओके सर, इससे क्या होगा बेटा? देखो इससे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको जब ब्रीड करा तो इसमें क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल। बट अगर मान लो वो हेटेरोजाइगस टॉल हुआ तो इस केस में क्या होगा गाइस? कैपिटल टी स्मॉल टी, small t, let us see, capital T small t here, then again small t, yes, capital T small t and small t। तो guys in this case if it was a heterozygous tall, तो टेस्ट क्रॉस में जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे 50% of them gonna be tall and 50% of them are gonna be short। तो
समझ आ गया? तो मैं अगर टेस्ट क्रॉस करूंगा तो मैं पता लगा सकता हूं कि जो मैं पहले मेरे पास जो टॉल थे वो कौन से थे, वो होमोजाइगस थे कि हेटेरोजाइगस थे। अगर सारे के सारे टॉल आते हैं टेस्ट क्रॉस में तो इसका मतलब है जो मेरे पास पेरेंट था ही वॉज होमोजाइगस। अगर सारे के सारे लाइक 50% टॉल और 50% शॉर्ट है तो मेरे को लगता है जो पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस टॉल था। तो गाइस आर यू टू अंडरस्टैंड? देख के पता नहीं चला, मेंडल को एक्सपेरिमेंट करना पड़ा और उसके ऑफस्प्रिंग्स देख के मेंडल पता लगाता है कि उसका पेरेंट का कैरेक्टर क्या था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पेरेंट को देख के पता नहीं चला, पेरेंट ने मेंडल ने पेरेंट को ब्रीड कराया, उसके ऑफस्प्रिंग्स आए और ऑफस्प्रिंग्स को देख के मेंडल को पता चला हाँ यार उसका फादर वाज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। आई होप आई एम मेकिंग दिस क्लियर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इसको एक बार देखना फिर समझ आएगा आपको। तो या मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था गाइस? कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, एज यू कैन सी यहां से ये डाला, यहां से ये डाला, यहां से ये डाला। सी कैपिटल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो गाइस जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। वेरी इंपॉर्टेंटली आएगा। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? बताना है, ठीक है? अमेजिंग। तो एक बार येलो सीड और ग्रीन सीड कर लेते हैं। येलो सीड क्या होगा गाइस? कैपिटल वाई, ग्रीन सीड स्मॉल वाई। F1 जनरेशन में क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना, ये F1 हो गया। F2 में क्या होगा गाइस? कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा यहाँ पे एक और डालो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो व्हाट विल हैपन? कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो आई विल गेट 3 येलो एंड 1 ग्रीन सीड। दिस 3 येलो एंड दिस वन इज गोना बी ग्रीन। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। थोड़ा फास्ट है बट लेकिन ये बहुत इजी है। देखो सेम यहाँ पे कैपिटल वाई आया, कैपिटल स्मॉल वाई, सेम थिंग है ना। ये वाला होगा हमारा ग्रीन, ये देखो येलो येलो येलो, दिस वन इज गोना बी। आजा मेरे बच्चे, ग्रीन का गया, ये रहा ग्रीन। ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से क्विक चेक करते हैं। The genotypic ratio of the F2 generation of a monohybrid cross will be, yes guys, 1:2, 2:1, 3:1, 1:1, 1:2। क्या होगा guys? जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, जीनोटाइपिक F2 जनरेशन का क्या होगा? क्या होगा गाइस? जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली 1:2:1, 1 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, नेक्स्ट वन। द क्रॉस कैपिटल Y स्मॉल y into small y will yield what? 1 कैपिटल Y 2 स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y, ये या फिर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन? कम ऑन गाइस बताओ। सो करके देखो तभी आपको जितना ज्यादा यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। ओके, यस, हैव यू ट्राइड? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, मेरे साथ करो नहीं तो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, और इधर लिख दो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो ब्रीड करो इसको, क्या होगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे डालो, स्मॉल वाई यहाँ पे डालो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड here again small y। तो guys 2 will be capital Y small y, 2 will be small y। 2:2 का मतलब क्या होता है? 1:1। कैन आई से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल Y small y is 2, small y। कैन आई से it is gonna be this one, see capital Y small y 1 and small y 1। this guys exactly समझ आया? एक और बार देखना इसको, ठीक है। ग्रेट जॉब गाइस, क्लैप्स फॉर यू ऑल। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने खत्म करा। आज हमने क्या पढ़ा गाइस? हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा मेंडल ने पी प्लांट चूज करा, क्यों चूज करा मेंडल ने पी प्लांट। फिर हमने देखा मेंडल ने क्या लॉज दिए, मेंडल ने लॉज दिए तो वो कैसे था। एंड वी स्टडीड हाउ मेंडल वाज सो जीनियस कि ही वाज सो अहेड ऑफ टाइम कि उन्होंने क्रोमोसोम के बारे में पहले ही पता कर लिया था विदाउट नोइंग इट, है ना। ही कॉल्ड देम एज फैक्टर्स। फिर हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, जब वो बस एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे। उसका हमने जीनोटाइपिक रेशियो और उसका फिनोटाइपिक रेशियो भी हमने देखा। और फिर हमने देखा कि मेंडल को पता कैसे चला कि वो होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, और मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कैसे करा, है ना। मैंने बताया था आपको टेस्ट क्रॉस क्या होता है गाइस, सॉरी, टेस्ट क्रॉस क्या होता है? वो वाला क्रॉस जिसमें मैं F2 जनरेशन के टॉल वाले को मैं रिसेसिव ट्रेट, जो प्योर रिसेसिव उससे ब्रीड करता हूं। अगर सारे के सारे टॉल आते हैं तो उसको मैं कहता हूं प्योर टॉल था। अगर हाफ टॉल और हाफ डॉर्फ था उसको मैं कहता हूं कि रिसेसिव, सॉरी हेटेरोजाइगस टॉल था। कुल गाइस एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको करना। इफ अ हेटेरोजाइगस पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ व्हाइट फ्लावर्ड पी प्लांट, व्हाट वुड बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेक्ट? आपको पता है फिनोटाइप। अब इसमें कैच क्या है आपको बताया नहीं है कि व्हाइट डोमिनेंट है या पर्पल डोमिनेंट है। तो गाइस ये अगर आपको याद है स्टार्टिंग में हमने एक टैबुलर कॉलम करा था जिसमें बताता है ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है,
तो गाइस कई बार होता है एग्जाम में दे गिव यू एंड समटाइम्स दे डोंट गिव यू व्हिच इज डोमिनेंट व्हिच इज लाइक फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन. तो फॉर दैट गाइस व्हाट यू शुड डू, यू शुड लर्न द 7 traits. जो 7 traits है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये डोमिनेंट है, ये लेसेस है. फॉर एग्जांपल येलो और ग्रीन में येलो कलर डोमिनेंट है ना. राउंड और रिंकल में राउंड डोमिनेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है. ठीक है, तो वो एक बार देख लेना तभी दिस क्वेश्चन. And yeah, do let me know in the comment guys, comment में बताना मुझे. And do let me know how did you like the session, did you learn from it, did you enjoy the session, है ना. And guys, exactly, don't forget to subscribe to the channel, share it with your friends and like the video, है ना, so that maximum people can watch it and learn from this. And yeah, so guys, you can write to me at amrit.raj@gmail.com, है ना. And that's it from my side guys. We are gonna do amazingly, uh, awesome तरीके से we'll complete this chapter, है ना. तो keep smiling guys. I see you in the next session. Bye bye, have a good day.